سب سے پہلے آپ کو بتائیں، قومی اسمبلی 9 اگست کی رات کو تحلیل کر دی جائے گی۔ انتخابات کو کسی سازش یا خاص مقصد کے لیے آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم سیاستدان کو ہونا چاہیے۔ ہماری پارٹی نے اسحاق ڈار کا نام نگراں وزیر اعظم کے لیے نہیں دیا۔ اسحاق ڈار، رضا ربانی سمیت کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے۔ ٹیکنوکریٹ کبھی نیوٹرل نہیں ہوتے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، پنجاب الیکشن پہلے ہو جاتا تو یہ عام انتخابات کو بے معنی کر دیتا۔ یہ لوگ کے پی میں نہیں، صرف پنجاب میں الیکشن کرانا چاہتے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پنجاب میں الیکشن کرا کر ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ نواز شریف الیکشن سے 1.5 ماہ پہلے وطن واپس آئیں گے۔ سانحہ 9 مئی پر لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، ان کا کیس فوجی عدالتوں میں چلے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جو جرم کیا اس کی سزا بھگتیں گے۔ نگران سیٹ اپ کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان مشاورت جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر ہاؤس سندھ میں ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات۔ عبوری سیٹ اپ اور نگراں وزیر اعظم کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے چناؤ کے لیے پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا، فائنل راؤنڈ کو بھی جلد حتمی شکل دے دی جائے گی۔ راجہ ریاض کی زیر صدارت اپوزیشن رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ اپوزیشن لیڈر نے نگران وزیر اعظم کے لیے 3 نام ساتھیوں کے سامنے رکھ دیے۔ نگران وزیر اعظم کون ہوگا؟ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے رابطوں میں تیزی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کراچی میں ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات۔ عبوری سیٹ اپ اور نگران وزیر اعظم کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر ہاؤس سندھ میں ہونے والی ملاقات میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال اور نگران سیٹ اپ کے معاملے پر تفصیلی بات چیت ہوئی، جبکہ ایم کیو ایم کے وفد کی جانب سے مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ ہوگا۔ معاملے پر 2 سیاسی جماعتوں سے مشاورت ہو چکی، دیگر جماعتوں سے بھی جلد مشاورت ہوگی۔ نگراں حکومت کے حوالے سے نام بھی ابھی تک زیر غور آئے ہیں یا نہیں سر؟ کل کو غور و خوض ہوا ہے ایک میٹنگ کے نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے سر آپ کی طرف سے کیا کیا نام سر ممکنہ طور پہ؟ متفقہ نام ہوں گے جو بھی ہوں گے۔ تمام پارٹیوں نے دیے سر؟ اس میں 2 پارٹیاں تھیں، باقی پارٹیوں سے مشورہ ہو۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی زیر صدارت اسلام آباد میں منحرف اراکین کا اجلاس ہوا، جس میں عبوری سیٹ اپ اور نگران وزیر اعظم کے ناموں پر مشاورت ہوئی۔ اب بات کریں گے انتخابات کی۔ نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ۔ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں، بل کے مطابق نگران حکومت ملکی معیشت کے بہتر مفاد سے متعلق ضروری فیصلے کر سکے گی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کو آئی ایم ایف طرز کے معاہدوں پر اختیار دیا گیا تو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ بل کے بہانے اختیارات دے کر انتخابات کو آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. اپوزیشن کا احتجاج کام آیا، نہ اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کی مخالفت۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 کی منظوری دے دی گئی۔ The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. بل کے تحت الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کی گئیں۔ راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ نگراں حکومت کے اختیارات محدود کرتے ہوئے سیکشن 230 کی منظوری بھی دے دی گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا معاملے پر ایشو بنا، لیکن حکومتی کمیٹی کے اجلاس میں تمام ترامیم پر اتفاق ہو گیا۔ سیکشن 230 کے تحت نگراں حکومت بعض فائنل معاہدوں پر دستخط کرنے کا اختیار رکھے گی۔ بل کے تحت نگراں حکومت کو اثاثے بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سینیٹر رضا ربانی صاحب نے کہا کہ اثاثے بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی، لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ جو کیبنٹ ڈیسیژنز فیڈرل گورنمنٹ میں ہو چکے ہیں اور وہ ڈیلز جو ہیں وہ الاؤ کر دی گئی ہیں، ان کے کانسیکوینشل کچھ کام ہیں جو ہونے ہیں تو ان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تو یہ اس کو کلیریفائی کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے نگراں حکومت سے متعلق شک کی مخالفت کی، بولے کہ نگران سیٹ اپ کے اختیارات بڑھانا درست نہیں۔ نگراں وزیر اعظم کو آئی ایم ایف طرز کے معاہدوں پر اختیارات دیے تو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔
तहरीक इंसाफ ने बिल की मुखालफत की। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने तरमीम पेश की जो ऐवान ने मुस्तरद कर दी। उनका कहना था कि बिल के बहाने इख्तियारात देकर इंतखाबात को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। मिस्टर स्पीकर, मैं इसको स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ समझता हूँ। जो नई वर्डिंग आई है, ये भी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट, इसको मैं सॉफ्ट कू कहता हूँ। इसको मैं आइंदा इंतखाबात को मुतनाज़िया करने की बुनियाद करार देता हूँ। नए कानून के तहत जारी मुआशी मंसूबों और बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर अमल दरामद का इख्तियार निगरान हुकूमत को मिले। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर कहते हैं निगरान हुकूमत ऐसे फैसले नहीं कर सकती जो रिवर्स ना हो। पार्लियामेंट ने तरामीम को मुस्तरद ना किया तो सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर देगी। निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत की जगह नहीं ले सकती। कल एक ऐसी अमेंडमेंट आ गई, वो ऐसी अमेंडमेंट है जो कि पूरा कॉन्सेप्ट हमारे आइन का और रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत का और पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का वो तब्दील कर देता है। पार्लियामेंट है, आइन के तहत उसको सॉवरन बनाया गया है, वो कानून साजी कर सकता है और ओवरसाइट करता है काबीना पे। और सबसे जरूरी चीज ये है कि हुकूमत जो है वो इसके ताबे है। जब आपका प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो एक केयर टेकर सेटअप आ जाता है, लेकिन केयर टेकर से मुराद है कि उसकी पावर्स क्या होंगी। केयर टेकर का मकसद क्या है? वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, उसने स्टेटस को मेंटेन करना है। केयर टेकर रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत की जगह नहीं ले सकता। द जॉब इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हम केयर टेकर गवर्नमेंट को सिर्फ परमानेंट सेटअप नहीं दे सकते। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम इट। तो मेरी इल्तिजा ये होगी सर, जो तरमीम लेके आ रहे हैं इन्होंने कुछ उसमें डाइल्यूशन जरूर की है, लेकिन वो डाइल्यूशन सफिशिएंट नहीं है सर। उसको रिजेक्ट करें। उसको रिजेक्ट इसलिए करें क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। इट इज सच एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। कुछ लोग जादू टोना और फूंके मार रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब नहीं गया। वज़ीर आज़म ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगले माह हमारी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी, अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी। अगले माह हमारी जो टर्म पूरी हो रही है, जो भी नई हुकूमत आएगी जिसको अवाम मैंडेट देंगे वो 1 लाख लैपटॉप सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर वो तकसीम करेंगे, जिस तरह आज यहाँ पर हो रहा था। ये पाकिस्तान के लिए वो अरबों डॉलर कमा के ले आएंगे जो कि हमारी इंडस्ट्री सनत हिरफत अभी तक वो टारगेट अचीव न कर सकी। माजी करीब की हुकूमत में कि 3 अरब डॉलर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को दे दिया गया। इन बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? छोटे किसानों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? मरबूत और ठोस प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। बदखा थे, वो दिन रात अपना जादू टूने कर रहे थे, फूंके मार रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। अल्लाह ताला को आपकी तरक्की और खुशहाली मंजूर थी कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया। कौम का हारी जो है वो पहले ही बड़ी महंगाई के नीचे दबा हुआ है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो फिर करप्शन का खात्मा करना होगा, तब पाकिस्तान जाकर एक अजीम मुल्क बनेगा। तोशाखाना केस की तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज हमायूं दिलावर ने तफसीली फैसले में लिखा कि कल अदम हाजिरी पर चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में मुलजिम चेयरमैन पीटीआई के लिए 35 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा तैयार कर लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर होने का तफसीली फैसला जारी। जज हमायूं दिलावर ने 2 सफ़ात पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले में बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। वकील कोहर अली खान को कल चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की जाती है। अदम हाजिरी पर चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। दूसरी जानब चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में मुलजम चेयरमैन पीटीआई के लिए सवालनामा तैयार कर लिया गया। सवालनामे की कापी GNN न्यूज ने हासिल कर ली, जो कि 35 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सवालनामे में पूछा गया कि क्या आपने ट्रायल के दौरान इस्तगासा की जानब से पेश किए गए शवाहिद को सुना और समझा है? आपकी अपने खिलाफ तोशाखाना से मुतल्लिक फौजदारी कार्रवाई के लिए दायर शिकायत पर क्या राय है? इस्तगासा के शवाहिद के मुताबिक आपने साल 2017-18 के असासों की तफसीलात जमा कराई। आपने साल 2018-19 में बिकने वाले तहाइफ के खरीदारों की तफसीलात फराहम नहीं की। क्या कहेंगे?
सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा कि अदालत ट्रायल कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट के दायरा इख्तियार और जज हुमायूं दिलावर पर इतराजात से मुतल्लिक पीटीआई चेयरमैन की दरख्वास्तों पर एक साथ फैसला करने की हिदायत की है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, सिंध असेंबली में नई तारीख रकम हो गई। ऐवान से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले पीटीआई के हलीम आदिल शेख को हटाकर एमकेएम की राना इंसार को अपोजिशन लीडर बना दिया गया। राना इंसार मुल्क की किसी भी सूबाई असेंबली में पहली खातून अपोजिशन लीडर बन गई हैं। असेंबली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात हमीद सोमरू की इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली इजलास में नई तारीख रकम। ऐवान से मुसलसल गैर हाजिरी पर तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडर की कुर्सी एमक्यूएम को मिल गई। हलीम आदिल शेख की जगह राना अंसार मुल्की तारीख में किसी भी सूबाई असेंबली की पहली खातून अपोजिशन लीडर बन गयी। इससे कबल 90 की दहाई में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर थी। एमक्यूएम और जीडीए के 39 अरकान की हिमायत से राना अंसार अपोजिशन लीडर बन गई। इजलास खत्म होने से कबल स्पीकर ने राना अंसार को मुबारकबाद देते हुए अपोजिशन लीडर की निशस्त पर बिठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में राना अंसार ने अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत के मराहिल बैठ कर तय करेंगे। ऐसा वजीर आला लाना है जो मामला बेहतर अंदाज में चला सके। सिंध के तमाम लोगों ने मुझे मुंतखब किया और सिंध के अवाम के लिए ही मैं यहाँ खड़े होकर उनका मुकदमा लड़ूंगी, और चाहे दिन थोड़े हैं लेकिन मुकाबला सख्त है। जबकि सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर अपने रद्द अमल में हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध का सबसे बड़ा मसला हल कर लिया गया, अब तो सिंध के मसाइल का सोच लो। सबसे बड़ा मसला जो सिंध का था 2 महीने से अपोजिशन लीडर की तब्दीली, चलो जी आज तब्दील हो गया, खुश रहें, सबको मुबारक हो। सिंध हुकूमत को, उनके इत्तेहादी जो कि सो कॉल्ड अपोजिशन है, सबको मुबारक हो। असेंबली सेक्रेटरीट ने अरकान के दस्तखत की तस्दीक के बाद राना अंसार को सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिक्विजिशन पर एमक्यूएम के 9, पीटीआई के 9 और जीडीए के 10 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। हमीद सुमरो, जीएनएन कराची। और अब आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान में सैलाब के बाद बहाली पर बातचीत हुई। तरक्की पजीर ममालिक में फूड सिक्योरिटी के अमूर पर भी बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ स्वीडन और यूरोप के दीगर ममालिक में कुरान पाक नजर आतिश करने की नापाक हरकत पर भी गुफ्तगू की। अक़वाम मुत्तहिदा पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया। लाहौर में महकमा सेहत और एलडीए ने पीटीआई सेनेटर डॉक्टर जरका के 2 क्लिनिक सील कर दिए। डॉक्टर जरका का कहना है कि पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ पर तनकीद के बाद इंतकामी तौर पर उनके क्लिनिक सील किए गए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सेनेटर डॉक्टर जरका में तकरार हुई थी। तफसीलात वासिफ महमूद की रिपोर्ट में। लाहौर में महकमा सेहत और एलडीए की कार्रवाई। पीटीआई सेनेटर डॉक्टर जरका के 2 क्लिनिक सील कर दिए। महकमा सेहत के मुताबिक डॉक्टर जरका के क्लिनिक से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसकी वजह से इमारत को सील किया गया। महकमा सेहत के बाद एलडीए हुकाम भी मुतहरिक हो गए और डॉक्टर जरका के क्लिनिक सील कर दिए। एलडीए हुकाम के मुताबिक रिहायशी प्रॉपर्टी को कमर्शियल सरगर्मियों में इस्तेमाल करने की वजह से डॉक्टर जरका का क्लिनिक सील किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 दिन में गैर कानूनी कमर्शियल प्रॉपर्टी को रिहायशी प्रॉपर्टी में तब्दील ना किया गया तो मजीद कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर जरका का कहना है कि उन्होंने पार्लियामेंट के इजलास में वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ पर तनकीद की, जिसके बाद इंतकामी कार्रवाई करते हुए उनके क्लिनिक सील कर दिए गए। ये इनकी खासा है, गुल्लू बाट और गुंडागर्दी, और उनसे ये नहीं लिया गया कि कोई खातून में इतनी जरूरत हो कि वो इज्जत से उनका जवाब दे। मैंने उनकी भी इज्जत रखी, लेकिन आदत नहीं है ना। ऊपर से ये कि अब कल मुझे कोई गिरफ्तार करने भी आ जाएगा, कोई डाला भी आ जाएगा, कोई जाली FIR भी हो जाएंगी, तो ठीक है, करें जो करना है। पीटीआई सेनेटर डॉक्टर जरका लाहौर में जल्दी इमराज के क्लिनिक चलाती हैं। उन्होंने गुलबर्ग में अपनी रिहाइशगाह पर भी अपना क्लिनिक बना रखा है। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ जवाद हसन, GNN लाहौर। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना कशूर कशाई। शहादत भी ऐसी कि कौम फ़ख्र करे। जुर्रत और बहादुरी की ऐसी मिसाल के सबसे बड़े इनाम निशान हैदर के अव्वलीन हकदार ठहरे। ये है मादरे वतन की खातिर दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने वाले कैप्टन सरवर शहीद।
जो पाक फौज के सपूतों के लिए बहादुरी की रोशन मिसाल हैं। इस्लामाबाद से एजाज अहमद की रिपोर्ट। गुजर खान के करीब रावलपिंडी जिला के गांव संगोड़ी में ब्रिटिश आर्मी से ताल्लुक रखने वाले हयात खान के घर पैदा हुए कैप्टन सरवर शहीद। उन्होंने फौज में शमूलियत तो 1944 में ही इख्तियार कर ली थी और 1946 में कैप्टन के ओहदे पर तरक्की पाई, मगर क़याम पाकिस्तान के बाद मादरे वतन के दफा की खातिर हर कुर्बानी देने की कसम खाई। 1948 में जब भारत ने कश्मीर के महाज पर छेड़छाड़ शुरू की तो कैप्टन सरवर का कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन उनकी दिली मुराद उस वक्त बर आई जब उन्हें कोर्स की तकमील पर यूनिट के साथ कश्मीर जाने का हुक्म मिला। कश्मीर पहुंचे तो कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल मसूद को तलाश थी एक ऐसे जर्री और बहादुर अफसर की जो उड़ी के करीब दुश्मन की मुश्किल तरीन चेक पोस्ट को तबाह कर सके। तो कैप्टन सरवर शहीद ने इस खतरनाक मुहिम के लिए अपनी खिदमात पेश की। 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के उड़ी सेक्टर पर दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया। कार्रवाई के दौरान दुश्मन की कई गोलियां उनके जिस्म में पैवस्त हो चुकी थी, लेकिन अपने जख्मों की परवाह किए बगैर साथियों के हमरा उन्होंने खारदार तारों को अबूर करके दुश्मन के मोर्चे पर आखिरी और फैसला कुन हमला किया। कैप्टन सरवर शहीद ने सीने पर गोली खाई और जामे शहादत नोश किया। कैप्टन सरवर शहीद वहीं सुपुर्दे खाक हुए, मगर दुश्मन की इस चौकी पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। कैप्टन सरवर शहीद को बहादुरी के इतराफ में निशाने हैदर के आला तरीन एजाज से नवाजा गया। कैप्टन सरवर शहीद ये एजाज हासिल करने वाले कौम के पहले सपूत थे। ये एजाज उनकी बेवा करमजान ने वसूल किया था, जो संगोड़ी में अपने शोहर की यादगार के अहाते में दफन है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।